Hello everyone, I'm Noreen Hassan, second year MBBS student at Hamdard Institute of Medical Sciences and Research. आज मैं आपको कुछ अपने लाइफ के फेलियर्स एंड कुछ सक्सेसफुल पॉइंट्स के बारे में बताना चाहूंगी. Let me take you back to the time when I was doing my 11th and 12th classes. मैं हमेशा से टॉपर्स में रही हूँ and have won many academic awards. I had this already planned up in my mind कि मुझे आगे जाकर मेडिकल ही करना है and nothing else. And हमेशा से क्योंकि टॉपर्स में रहे हैं तो आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि नीट तो क्रैक हो ही जाएगा. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस. मेरा कॉन्फिडेंस कब ओवर कॉन्फिडेंस पे टर्न अप हो गया, आई डिड नॉट नो. I gave my board exams. I passed with 93% and topped in biology subject in particular. And got second highest marks in physics. तो इन सब चीजों ने मेरा ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा और बिल्डअप कर दिया, which wasn't good. नीट आया, I gave my exam. I was like कि नीट तो क्रैक होना ही है and I will be able to grab a seat in Delhi Government College. But that wasn't true. I got 434 marks in NEET at that time. ये 2016 की बात है. Getting 434 marks in the first attempt was considered okay-ish in 2016, but they weren't good enough for me to grab a seat in government college. तो मुझे पता था कि एक साल ड्रॉप करना ही है. तो I pushed up myself. I just picked up my books again and tried hard again. But इस बार भी I did not learn from my past mistakes. I did not work harder. जो भी सारी कमियां थी वो मैंने दूर करने का ट्राई ही नहीं किया. नीट दोबारा आया. आई गेव माई एग्जाम. इस बार थोड़े अच्छे मार्क्स आए. आई कुड हैव गॉट अ BDS सीट इन दिल्ली गवर्नमेंट कॉलेज, बट दिल तो MBBS का ही था. So I decided to drop again. Trust me, it is not at all easy for you to take so many drops. I was devastated. I was shattered. जो आपको कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होता है स्टार्टिंग में, वो आपका इतना गिर जाता है कि यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर ओन कैपेबिलिटीज, यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर ओन एबिलिटीज एंड आप सोचने लग जाते हो वो सारे अवार्ड्स, वो सारे अचीवमेंट्स जो आपने लिए हैं वो आपने खुद से लिए या फिर दैट वाज जस्ट लक. तो उस टाइम पे यू नीड इमोशनल सपोर्ट. And that emotional support was provided by my mom, my dad, my elder brother, and one of my friend. Emotional support is something which is very, very necessary for you at that time. They consoled me and they helped me and gain confidence again कि दोबारा से दो, you will be able to crack it. This time I gave NEET again. NEET में I got 510 marks. Good enough marks for me to grab a seat in HIMSR, a prestigious college in Delhi, but not a government college. खैर 2 साल ड्रॉप करने के बाद I did not have that courage to drop again. Today is the day when I am doing my MBBS and I realize my mistakes which I did then. जो लोग कहते हैं you are talented, you have that thing और आप कर लोगे, आप सबसे अलग हो, वो सारी चीजें आपका ओवर कॉन्फिडेंस ही बिल्डअप करती है एंड नथिंग एल्स. आप हार्डवर्क करना भूल जाते हो. दैट इज द मेन थिंग. लेट मी टेल यू वन थिंग कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड हार्ड वर्क. मैं जो उस टाइम करती थी आई रियलाइज इट नाउ कि दैट वाज जस्ट वर्क. आप स्कूल जाते हो, आप कोचिंग जाते हो, दैट इज नॉट हार्ड वर्क, दैट इज जस्ट वर्क. कोचिंग से आने के बाद आप नोट्स रिवाइज करते हो, दैट इज ऑल्सो जस्ट वर्क. हार्डवर्क तब होता है जब आप सुबह में 4 बजे उठोगे एंड देन यू लर्न वट एवर यू हैव टू लर्न, मेक द शेड्यूल फॉर द होल डे एंड देन रिवाइज वट हैव बीन टॉट टू यू द प्रीवियस डेज एंड यू कीप दिस रूटीन कंसिस्टेंट फॉर द नेक्स्ट 2 years. आप कोचिंग जाके 2 क्लासेस अटेंड कर रहे हो, दैट इज नॉट हार्ड वर्क. आप उसके बाद 2 एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड कर रहे हो, यू आर clearing on your doubts, you are making notes, that is hard work. दिन में 1 टेस्ट देना is not hard work. दिन में
अगर आप 3 टेस्ट दे रहे हो, दैट इज हार्ड वर्क. You have to figure out the difference between the two. Only then you will be able to succeed. And I believe talent is always beaten by hard work. I remember securing rank 50 out of 300 students in one of my coaching mock tests. And this is no good rank for me to grab a seat in any government college across India. तो मुझे मालूम था और हार्ड वर्क करना है और अच्छे से मेहनत करनी है. तो आई ट्राइड एंड देन गेव द नेक्स्ट मॉक टेस्ट एंड मैनेज्ड टू गेट रैंक 2 आउट ऑफ 300 स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट वन. यही डिटर्मिनेशन यू हैव टू रिक्वायर फॉर द होल ऑफ योर प्रिपरेशन जर्नी. आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे. जैसे वन ऑफ माई अंकल हु वॉज वेरी वेरी डियर टू मी, हु वॉज वेरी वेरी क्लोज टू मी, he passed away just 1 month back, just 1 month prior to NEET. I was not in my senses then, but I geared up myself again, and I was determined that no matter what, I will definitely work towards achieving my goals. बस यही कुछ points हैं which you should follow and learn from. One more thing, guidance is very very important. ये गाइडेंस मुझे सहर इंस्टीट्यूट से मिली, सहर इंस्टीट्यूट के टीचर्स से मिली. दे नॉट ओनली टीच यू, दे नॉट ओनली क्लियर योर डाउट्स, बट दे गिव यू मॉरल सपोर्ट ऑल्सो, विच इज वेरी नेसेसरी. सेल्फ डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, कॉन्फिडेंस, not overconfidence, confidence, and emotional support. These are all the things, these are all the points which will lead you to success, inshallah. All the very best to you all for the next NEET exam, and work harder, stay safe, stay healthy.